डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हम लोगों ने डिस्कस किया है। लॉन्ग एगो मिस्टर हर्ज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन एनी कैथोड ray tube is placed in the presence of sunlight, then the event of sparking of electricity done very heavily. Okay beta, rate of sparking increased in the presence of sunlight. विद्युत स्फुलिंग या स्पार्किंग की रेट जो है बढ़ जाती है सनलाइट की प्रेजेंस से, बट मिस्टर हर्ज कुड नॉट डिफाइन इट, कुड नॉट एक्सप्लेन इट, कुड नॉट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ इट। इसके रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर सके। उसके बाद बच्चों, मिस्टर हालवेस सेटअप अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। He set a spherical glass hollow bulb and two metallic plates placed in it. Two metallic plate placed in it. One plate is as anode, another is as cathode. He saw when ultraviolet rays falls over cathode plate, then a special current start flowing in the circuit attached with that bulb. But Mr. Halves have no explanation for it. He again saw when ultraviolet rays incident, बदल दो अंग्रेजी से नाम लगा दो, incidents over anode plate, then no any current flows through that circuit. He could not explain this reason also. समझ आया बात? अंग्रेजी में बात कर रहे हैं हम, तो कल हमने ये सब समझा दिया था। In 1898, Mr. J.J. Thomson discovered a special phenomenon known as photoelectric emission, or you can say photoelectric effect. What is photoelectric effect? When मुँह कुछ दूंगा, ध्यान सुनो। When ultraviolet rays falls on any metallic sheet, then after a long time electrons start emitting out from that plate. This phenomenon is known as photoelectric emission, or you can say photoelectric effect. मिशन नाकामिल जी, समझ में आ रहा है कि कोई एक मेटालिक प्लेट है बदतमीज, और उस पर सनलाइट अगर ऑब्जर्व अगर जो है इंसिडेंट होती है, तो कुछ देर बाद उससे क्या निकलने लगते हैं? गधे हो, फोटोइलेक्ट्रॉन। और हाँ बदतमीज। और ये इफेक्ट जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कहलाती है। We can explain it in other way. Converting of optical energy into the terms of electric energy is known as photoelectric emission or photoelectric effect. A branch of physics in which we study about the relation between optical energy and electric energy. Changing of optical and electric energy with each other, known as photometry. There are some devices which are based on the converting of optical energy into electric energy, and also there are some devices which are based on converting of electric energy into optical energy. The name of a special device which is based on converting of optical energy into electric energy is known as solar cell, फोटो सेल, सोलर पैनल। समझ में आ रही है ना बात बेटा? अंग्रेजी मेरी तेज हो गई है। और उसके बाद बेटा बताए द डिवाइसेस, कल बेटा बहुत बार समझाए हैं, तो इसलिए आज हिंदी में बताएंगे। द डिवाइसेस विच आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू ऑप्टिकल एनर्जी is known as
LED. LED is a special type of device which convert electric energy into optical energy. Now it's clear बेटा. अब हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डियर स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन वो भी ब्रीफली कल के डेट पे हुआ था. याद करो क्या हुआ था. याद करो, इफ इट इज अ मेटेलिक शीट which is consist of metallic atom. Each atom contains free electron in its outermost shell in numbering 1 or 2 as well as nucleus. Okay, beta. When ultraviolet rays falls on this metallic sheet, then the optical energy absorbed by any one free electron of the metallic atom, and its energy increases and it give up its orbit and comes out from the atom, and now atom converted into the fixed ion, and the free electron start moving in between the vacant place of fixed ion. नहीं समझ में आया? ये सब बता चुके हैं कि आसिफ गधे कोई एक मेटालिक प्लेट हो तो छोटे छोटे बहुत सारे मेटालिक एटम से मिलकर बनी होगी, और हर मेटालिक एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक या दो फिर इलेक्ट्रॉन होंगे और न्यूक्लियस होगा. जब सनलाइट जो है इंसिडेंट होती है मेटालिक शीट पर, तो मेटालिक एटम का कोई एक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और एटम में उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है, तो एटम को छोड़कर एटम से बाहर आ जाता है, और इस समय एटम फिक्स्ड आयन या रेस्ट आयन बन जाता है, और फिर इलेक्ट्रॉन उसके बाहर आकर के वैकेंट प्लेस में मूविंग करने लगता है, वो भी इंक्रीज एनर्जी से. एंड इफ ऑप्टिकल एनर्जी अगेन इंसिडेंट ओवर द मेटालिक शीट, अभी भी अगर फोटो इलेक्ट्रिक रेज गिर रही हो, अल्ट्रावायलेट रेज अगर अभी भी इंसिडेंट हो रही हो, देन फ्री इलेक्ट्रॉन अगेन ऑब्जर्व optical energy and its energy increases and it start coming near to the surface of metallic sheet. metallic sheet के नजदीक आने लगता है, and amount of energy required for coming free electron near to the surface of metallic sheet. किसी मेटालिक शीट के फ्री इलेक्ट्रॉनों के लिए इतनी ऊर्जा जिससे वो सरफेस तक आ सके, This amount of energy is known as work function energy. और इस समय जो सनलाइट गिर रही हो उसकी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी या सच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट which is required for coming free electrons near to the surface of metallic sheet. Okay, it's called threshold frequency. ठीक है. एक और डेफिनेशन बताए थे कि when again ultraviolet rays falls on the metallic sheet, then this optical energy again absorbed by free electrons, and now free electrons energy increases from the work function energy, and it start emitting out from the metallic sheet as photoelectron. समझ में बेटा? और फंक्शन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हो जाती है तो जो है सीट से बाहर आ जाता है और क्या बन जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन के रूप में बन जाता है. तो वर्क फंक्शन एनर्जी की एक और डेफिनेशन यहाँ पर बताए थे, अमाउंट ऑफ एनर्जी एबव व्हिच emitting of फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड इज नोन एज वर्क फंक्शन एनर्जी. नहीं समझ में आया बेटा? जिस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हो जाने पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो जाए उसी एनर्जी को वर्क फंक्शन एनर्जी कहते हैं. और ऐसे फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द सच टाइप ऑफ लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी अबव व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्टेड. ओके, समझ में आ रही है? तो सत्यम गलत. तो जैसा कि जान रहे हो हम लोगों ने ये सारी चीजें एक्सप्लेन किया था. एक और यहाँ बात बताए थे कि व्हेन फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट्स फ्रॉम मेटालिक सरफेस दे गैदर्ड नियर द सरफेस मेटालिक सरफेस एंड फॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड. क्या बना लेते हैं?
and it contains highly negative charge and which start repulsion to the new photoelectron, and hence photoelectric event stopped. And if we settled a anode plate in front to the electron cloud and positive potential is given to anode plate, then photoelectrons attracted by the anode plate, and after some time this electron cloud completely disappear and photoelectric effect again started, and a current due to this which form is known as plate current या फोटोइलेक्ट्रिक करंट बदतमीज। तो हम लोग बेटा इतना समझे थे, कल की क्लास में बेटा सिद्धांत के तिवारी इतना हम लोग समझ लिए थे। तो अब बच्चों देयर वेयर 3 फेमस साइंटिस्ट, लेनार्ड, ध्यान सुन लो बेटा जानिए, लेनार्ड, मिलिकन, हर्ट्ज, who invented much for photoelectric effect। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन जो है अगेन जो है गेन किया। मिस्टर लेनार्ड एंड मिस्टर मिलिकन, ध्यान सुनो, मिस्टर लेनार्ड, मिस्टर मिलिकन, मिस्टर हर्ट्ज ऑब्जर्व्ड मच they experimented for photoelectric emission by using different amount of intensity of incident lights, different amount of frequency of incident light, as well as the plates having different work function energy as cathode and anode, and found so many observation, and the observation which are gain as conclusion are called laws of photoelectric effect। हम क्या बोले बेटा, समझ में आया? नहीं समझ में आया? किसी को समझ में आया? चलो कौन बताएगा क्या समझे? ना काबिल क्या समझे? तुम रोज आते नहीं हो, तुम बताओ आदत। हाँ सर, हर्ट्ज और आरिफ, मिलिकन और जो एक लोग और थे सर, वो डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट और डिफरेंट इंसिडेंट रे फॉल किए उनकी सीट पर और कई सारी ऑब्जर्वेशन दी। बस इतना ही तो है। मिस्टर हर्ट्ज, मिस्टर लेनार्ड एंड मिस्टर मिलिकन यूज्ड डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट लाइट, different frequencies of incident light, and different work function energy containing anode and cathode plates, and find some observation for photoelectric effect as conclusion that observations are called photoelectric effect laws। नहीं समझे? मिस्टर मिलिकन, लेनार्ड और हर्ट्ज ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बहुत सारे प्रयोग किए। इन्होंने बहुत भिन्न या वेरियस टाइप की या डिफरेंट टाइप की इंटेंसिटीज वाला लाइट यूज किया, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला लाइट यूज किया, डिफरेंट वर्क फंक्शन वाला मेटालिक प्लेट कैथोड एनोड के रूप में यूज किया। मतलब अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट कराया, ऐसा लाइट इंसिडेंट कराया कैथोड प्लेट पर जिसकी इंटेंसिटी अलग अलग हो। पहले 10 इंटेंसिटी वाला, फिर 20 इंटेंसिटी वाला, फिर 50 इंटेंसिटी वाला लाइट इंसिडेंट कराया, और अलग अलग इंसिडेंट इंटेंसिटी वाले लाइट के लिए जो भी उन्होंने देखा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उसी को कंक्लूजन के रूप में आपके सामने रखा। तो वही बोल रहे थे कि लेनार्ड, मिलिकन और हर्ट्ज ने यूज्ड incident light having different intensities, having different frequencies, and used plates as anode cathode containing different work function energies, and experimented much for photoelectric effect event, and as conclusion he finds some observation which are known as laws of photoelectric effect। तो मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना के लिए लेनार्ड, मिलिकन और हर्ट्ज ने बहुत सारे प्रयोग किए। उन्होंने भिन्न भिन्न तीव्रता माने इंटेंसिटी और भिन्न भिन्न आवृत्ति माने फ्रीक्वेंसी के प्रकाश का इस्तेमाल किया,
भिन्न भिन्न वर्क फंक्शन एनर्जी वाली प्लेटों का इस्तेमाल किया और बहुत सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए प्रयोग किया। निष्कर्ष के तौर पर, कंक्लूजन के तौर पर उन्होंने जो भी बातें पाई उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लाज कहते हैं, नियम कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम, प्रिंसिपल, और जो 5 है आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो बात समझ में आई कि मिस्टर लेनार्ड, इसका शॉर्टकट में समझे मतलब क्या हुआ, गधे। शॉर्टकट में मतलब ये हुआ कि मिस्टर लेनार्ड, अब एक लाइन में सुनो इतनी बातों को, मिस्टर लेनार्ड मिलिकन, एक लाइन में पूरी बात, मिस्टर लेनार्ड मिलिकन एंड हर्ज प्रूव्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी of the incident light, on the intensity of incident light as well as work function energy of the plates। यही बात तो समझ में इनको, तभी तो ये इन्होंने डिफरेंट इंटेंसिटी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट का यूज किया, तो इनको कई सारी बातें मिली होंगी। ये प्रूव किए कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड्स ऑन द intensity of incident light as well as frequency of incident light as well as work function energy of the plates। समझ में आई बात बेटा? एक लाइन का मतलब समझ में आया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बहुत सारा प्रयोग किया लेनार्ड, मिल्टन और हर्ट्ज ने, और ये जो है डिफाइन किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना जो लाइट गिराई जाती है, यूज की जाती है, उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी चेंज होने पर चेंज होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना, और किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर, और किस पर डिपेंडिंग होती है, वर्क फंक्शन एनर्जीज पर। ठीक है, तो मिस्टर लेनार्ड, मिलिकन एंड हर्ज सेटअप अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स फॉर देयर प्रूफ। नहीं समझे? शॉर्टकट में बोल रहा हूं, अपने प्रूफ को दिखाने के लिए उन्होंने स्पेशल प्रकार का ऑपरेटर सेटअप किया। तो उसका जो है हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, और फिर इन्होंने जो प्रूफ किया उसको भी बता रहे हैं। ठीक है, और इनके प्रूफ से कितने नियम निकल कर बाहर आएंगे, जो क्या कहलाएंगे बेटा गधे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लाज। तो देखिए जरा, लेनार्ड, मिल्टन एंड हर्ज सेटअप अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स फॉर द प्रूफ ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन बिलोंगिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को डिफाइन करने के लिए इन्होंने एक स्पेशल तरह का ऑपरेटर सेटअप किया। इट इज अ सिलिंड्रिकल hollow glass tube it is a cylindrical hollow glass tube used by वैज्ञानिक जो थे प्लेट जी। ठीक है, इन दिस प्लेट two metallic plates, in this tube two metallic plates C and P are settled। देखो ये एक मेटालिक प्लेट है बेटा, इस प्लेट का नाम बोलो प्लेट C, इसको हम कैथोड कहते हैं, और दूसरी प्लेट है इसको हम प्लेट कहते हैं, एनोड नहीं कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, प्लेट, इसका नाम है P। स्ट्रक्चर बता रहे थे, कंस्ट्रक्शन। हियर इज अ cylindrical glass tube G containing two metallic plates C and P. C is as cathode and P is as plate. And these plates are connected, look like this. These plates are connected, look like this, मतलब look here. Plate P is connected. Plate P is connected with a galvanometer for the measuring of current flowing in it, and also
it is connected with a voltmeter for the measuring of voltage. And cathode and plates are also connected with cathode plate of the battery and anode plate of the battery. Okay, बेटा ये डिवाइडर इसको हम बदल सकते हैं, इससे इसे लगा। Plate P is adjusted at it is given to positive and negative potential both. इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का पोटेंशियल दे सकते हैं। मिस्टर डेलार्ड, मिलिकन एंड हर्ट experimented much for the photoelectric effect. They used a special type of apparatus for the proof of photoelectric effect. They proved photoelectric effect depends on the intensity of incident light as well as frequency of incident light as well as work function energy of the plates. They defined it by some experiments. They use a light of different intensities and different frequencies for the proof of their experiment. They settle this type of apparatus. ऐसा apparatus सेटस किए. There is a window W from which sunlight incident on cathode plate. Here is window W. Okay. It is construction. Working बताएं, क्या बताएं बेटा? Working. इतना फिगर समझ में आया? कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? एनी डाउट बेटा? आसिफ गधे समझ आ रहा है? देखो इधर। When वर्किंग समझो, खड़ा खड़ा पूछ रहे थे को। When ultraviolet rays incident over this metallic plate, means cathode. When ultraviolet rays incident over cathode plate C, then you know, all of you, this optical energy is absorbed by some free electrons of metallic atom containing this plate. इस प्लेट के जो मेटालिक एटम है उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ऑप्टिकल एनर्जी को क्या करेंगे? एंड देयर एनर्जी इंक्रीजेस एंड हेंस दे कम्स आउट फ्रॉम द एटम्स and atoms form fixed ion, and these free electrons start moving in the vacant place of fixed ion. समझ आया? क्या समझे बेटा कि ये जो इसके मेटालिक एटम है, जब इस पर सनलाइट ऑब्जर्व हुई तो मेटालिक एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ऑब्जर्व किए, उनकी एनर्जी बढ़ी और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर आ गए और अब एटम क्या बन गया? रेस्ट आयन या फिक्स्ड आयन। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हाईली एनर्जी से फिक्स्ड आयन की गैपिंग में मूविंग करना शुरू कर दी। दिस अल्ट्रावायलेट रेज अगेन फॉल्स ऑन द मेटालिक शीट एंड हेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स moving with highly energy again absorb optical energy and their energy again increases and they start coming out to the surface of this cathode plate. नहीं समझे कि जो एनर्जी से मूव कर रहे थे फ्री इलेक्ट्रॉन, जब लाइट अभी इस पर गिर ही रही है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन और एनर्जी को एब्जॉर्ब किए और उनकी एनर्जी अब क्या हो गई? और बढ़ गई और वो क्या करना शुरू कर दिए? सरफेस तक आना शुरू कर दिए, इसके सरफेस तक। मीन्स उनकी एनर्जी
कहां तक पहुंच गई है बेटा? वर्क फंक्शन एनर्जी तक। हियर सनलाइट्स आर इंसिडेंटिंग, अभी इस पर इंसिडेंट हो रही है, हेंस ऑप्टिकल एनर्जी अगेन एब्जॉर्ब बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर एनर्जी इंक्रीजेस देन द वर्क फंक्शन एनर्जी। अब इनकी एनर्जी किससे बढ़ गई? एंड दे स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द कैथोड प्लेट एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर आने लगे एंड स्टार्ट गैदरिंग, क्या होने लगे बेटा? नियर द सरफेस ऑफ मेटालिक सी एंड इट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड व्हिच स्टॉप्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी वजह से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गया? समझ में आया? समझ आया कि नहीं? एट वंस प्लेट P settled at positive potential. Plate P settled at, if it become positive, then free electrons start moving towards plate P. ये इनकी ओर मूव करने लगे होंगे, ये ऐसे मूविंग इनकी स्टार्ट हो गई एंड यू कैन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूविंग शुरू हो गई है। कहां से कहां की ओर? कैथोड से प्लेट की ओर। देन सम स्पेशल करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम प्लेट टू कैथोड एंड दैट करंट इज कॉल्ड प्लेट करंट। प्लेट करंट फ्लो होने लगे। वर्किंग समझ में आ रही है बेटा? एक बात यहां पर समझो, इफ बी इंक्रीज्ड पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट P, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव वाला जो है बढ़ाते जाए, देन इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड मच एंड मच, मीन्स अमाउंट ऑफ प्लेट करंट आल्सो इंक्रीजेज। ध्यान से सुनना जो बता रहे हैं, मजेदार बात है। प्लेट P इज प्लेस्ड एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड हेंस electrons, photoelectrons of electron clouds are attracted towards plate P and a current named as plate current start flowing in that circuit. Plate current flow होने लगी है and the value of plate current IP increases on the increasing positive potential of plate P. मतलब इस प्लेट P का पोटेंशियल बढ़ाते जाओ पॉजिटिव वाला तो प्लेट करंट भी बढ़ती है। Amount of plate current increases on increasing plate potential, increases on increasing plate potential, increases on increasing plate potential। मतलब प्लेट P का पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं प्लेट करंट IP बढ़ती जा रही है। तो हम तो फिजिक्स बता सकते हैं ना यहाँ पर एक लॉ कि प्लेट करंट IP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, ऐसे बोल सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं बता सकते हम। क्यों? फिर से सुनो, यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा हूँ। प्लेट करंट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट। प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओ तो प्लेट करंट बढ़ रही है, बट व्हेन इट रीच टू मैक्सिमम अमाउंट इट बिकम सैचुरेटेड। मतलब जैसे ध्यान सुनो, जैसे यहाँ करंट 2 एम्पियर की है, पोटेंशियल 4 वोल्ट, पोटेंशियल 6 वोल्ट कर दिए ये 4 एम्पियर हो गई, पोटेंशियल 10 वोल्ट कर दिए ये 8 एम्पियर हो गई, पोटेंशियल 12 वोल्ट कर दिए ये 9 एम्पियर हो गई, पोटेंशियल 14 वोल्ट कर दिए ये 10 एम्पियर हो गई। आपको समझ में आ रहा है कि प्लेट करंट बढ़ रही है जबकि प्लेट पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन ये जब 10 एम्पियर पहुंच गई, हाईएस्ट पहुंच गई, इट बिकम सैचुरेटेड। और अब प्लेट पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, इट नेवर इंक्रीजेज, ये फिक्स हो गई है, 10 पे रहेगी, 10 से ज्यादा नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ प्रोपोर्शनल वाला नियम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल नियम तो कहेगा करके हम बढ़ता रहेगा तो ये भी बढ़ता रहेगा, लेकिन यहाँ प्लेट करंट बढ़ते 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 मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचती है तो क्या हो जाती है? सैचुरेटेड हो जाती है। उसके बाद प्लेट पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट नहीं बढ़ती। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? केमिस्ट्री का वर्ड है। जैसे बेटा अगर हम 1 लीटर पानी ले लें, जानवी कितना पानी ले लें? 100 ग्राम चीनी डालो, कितना घोल दो, घुल जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा। 100 ग्राम चीनी और डालो, घुल जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा। आधा किलो तक चीनी डाल दो, घुल जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन उसके बाद डालो चीनी
तो वो उसमें नहीं घुलेगा, क्योंकि अब वो सोल्यूशन सेचुरेटेड हो गया, संतृप्त हो गया, उसमें और अमाउंट सॉल्युबल की नहीं रिक्वायर्ड है। वैसे यहाँ करंट बढ़ते 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 जब एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है तो डिफिनिट और सेचुरेटेड हो जाती है, और तब प्लेट पोटेंशियल बढ़ाने पर सेचुरेटेड करंट का मान नहीं बढ़ता। यू कैन से प्लेट करंट इज नेवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट पोटेंशियल, क्योंकि इसको बढ़ते रहना चाहिए था ना, लेकिन ये फिक्स हो गई, नहीं बढ़ रही है। बात समझ में आई बेटा? इतना बात समझ में आया? बहुत थ्योरी है यार, ठीक तो देखो पगलाए जैसे बुलाए। ध्यान से सुनिए जरा। ए प्लेट पी इज सेटल्ड एट पॉजिटिव पोटेंशियल, देन photoelectron of electron clouds are attracted by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड हेंस एज रिजल्ट प्लेट करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सर्किट व्हिच वैल्यू इंक्रीजेज ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ प्लेट पोटेंशियल। इस P का पोटेंशियल बढ़ाते जाओ तो प्लेट करंट क्या होती जाती है, बट प्लेट करंट increases much and when it become highest, it find its maximum value, then it become saturated, and when plate current is saturated, then on increasing plate potential it never increases। जब प्लेट करंट बढ़ते बढ़ते अधिकतम मान तक पहुंचकर सेचुरेटेड हो जाती है तो ये प्लेट पोटेंशियल बढ़ाने पर नहीं बढ़ती। समझ में आया बेटा? बट एट दिस टाइम, इसी समय ये जो सनलाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दो। एट वंस इफ बी इंक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, देन अगेन सेचुरेटेड करंट इंक्रीजेज। तो यहां प्लेट करंट किस पर डिपेंड कर रही है? इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर। जैसे इंटेंसिटी, जैसे जितना इंटेंसिटी 50 इंटेंसिटी का लाइट अगर गिर रहा था और सेचुरेटेड करंट 10 एम्पीयर तक फिक्स हो गई है, उससे ज्यादा नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर जो है हम इस पर 100 इंटेंसिटी वाली लाइट गिरा दें 50 की बजाय, तो करंट वहां फिर बढ़ने लगेगी, 11 12 13 20 हो जाएगी। तो इस वजह से when plate current becomes saturated, it never lies the value of plate potential, but at once on increasing intensity of incident light, saturated current also increases. It means Mr. Leonard Milken and Hertz observed photoelectric current is directly proportional to the intensity of incident light। यही तो समझ में आया बेटा? बस समझ में आया कि नहीं? कि ये जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट को यहाँ करंट की भाषा में कह सकते हो रेट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, रेट ऑफ या फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट इंसिडेंट हो रही, गिर रही है। बात समझ में आई? इट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला लॉ भी कहते हैं। तो इंटेंसिटी पर डिपेंडिंग देख रहे हो कि नहीं? तो क्या डिपेंडिंग है? क्या डिपेंडिंग है? रेट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड्स या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, या फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये इंटेंसिटी पर डिपेंडिंग है कि नहीं? समझ में आया? बट इफ प्लेट P is placed at negative potential, if B put the plate P at, अगर इसे निगेटिव पोटेंशियल पर रख दे तो जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे अब रिपेल होने लगेंगे, then the photoelectrons coming towards plate P are starting repulsion, and hence the value of plate current decreases and becomes zero। जो जो इसका प्लेट P का निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, प्लेट करंट घटते घटते क्या हो जाएगी? समझ में आ रहा है बेटा? If B put plate P at a negative potential, then photoelectrons find
repulsion and amount of plate current decreases. On increasing negative potential of plate P, photoelectric current decreases to zero. And the maximum value of negative potential of plate P for which photoelectric current become zero, it's called cutoff potential. क्या बोले हम नहीं समझे। इस प्लेट P को अगर निगेटिव पोटेंशियल पर रख दिया जाए तो यहाँ जो है इस ऑपरेटर्स में प्लेट करंट क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। प्रज्ञा, प्लेट करंट क्या होने लगती है, कब, इसको निगेटिव पोटेंशियल रखते हैं और इसका निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाए, जैसे -1, -2, -3। इफ निगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट P इंक्रीजेस देन प्लेट करंट डिक्रीजेस एंड बिकम, और जितने पोटेंशियल पर ये करंट जीरो होती है वह निगेटिव पोटेंशियल कटा पोटेंशियल कहलाता है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू, क्या बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ निगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट P फॉर विच प्लेट करंट इज जीरो कॉल्ड कटा पोटेंशियल। समझ में आया बात बेटा, कि इस प्लेट P का वह मैक्सिमम निगेटिव पोटेंशियल जिस पर प्लेट करंट जीरो हो जाए उसे हम क्या कहते हैं बेटा। अभी अभी आपने देखा कि प्लेट करंट किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर। अगर ये प्लेट P निगेटिव पोटेंशियल पर है, कटा पोटेंशियल पर, प्लेट करंट जीरो हो गई है। अब अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं, इफ बी ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर जो है इंटेंसिटी लाइट की जो है बढ़ाएं, लेकिन यहाँ कोई करंट आपको मिलेगी नहीं। मतलब अगर प्लेट P कट ऑफ पोटेंशियल पर है, करंट जीरो है, तो आप कितनों इंटेंसिटी बढ़ाओ लेकिन आपको कोई करंट नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको इतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है कि ये यहां से यहां तक पहुंच सके और करंट फ्लो दिखा सके। यही तो मतलब हुआ। क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो कि अगर ये किस पोटेंशियल पर है, कट ऑफ पोटेंशियल पर, प्लेट P क्या हो गई है, करंट P जीरो। अगर ये करंट जीरो हो गई है, ये कट ऑफ पोटेंशियल पर है, तो कितनों इंटेंसिटी बढ़ाओ लेकिन यहाँ कोई प्लेट करंट नहीं मिलती। इसका मतलब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं आ सकते, इनकी इतनी एनर्जी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ में बेटा, अगर जो है एनर्जी जो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लिए जरूरी है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर यहाँ पर प्लेट करंट मिलने लगती, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ जाते। तो रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और बच्चों, इंटेंसिटी पर निर्भरता मैंने दो बताई आपको। इसको मैंने जब आपको लिखाया है तो अलग से लिखाया है, हेडिंग डाल करके, डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी ऐसे लिखाया है कि इंटेंसिटी पर डिपेंडिंग लाइट की, और 2 कॉलम में लिखाया है। एक में पहला नियम आया है, दूसरे में दूसरा नियम आया है, पार्ट ए पार्ट बी करके लिखाया है। फिर से ध्यान दो, खत्म होने वाला है। डिपेंडिंग ऑफ, मार के भगा दे पहले, डिपेंडिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंडिंग। कितनी डिपेंडिंग है, 2। पहला बताया मैंने बेटा कि व्हेन प्लेट P इज प्लेस्ड एट पॉजिटिव पोटेंशियल देन फोटो इलेक्ट्रॉन्स of electron clouds are attracted by the plate P and hence plate current is flows through the circuit and which increases on increasing the positive potential of plate P. And when plate current become maximum and become saturated, then it does not increases on increasing potential of plate P. But at once, if intensity of incident light increases, then plate current also increases. We can say plate current is directly proportional to the intensity of incident light. Means लास्ट के रूप में rate of photoelectric emission or photoelectric current IP is directly proportional to the intensity of incident light. ये पहला लॉज आया, पहला कंक्लूजन आया और इंटेंसिटी पर पहली डिपेंडिंग आई।
जो लोग शुरुआत के दिन से मतलब कल से और उसके पहले वाले एक दिन जो पढ़ाए थे नहीं पढ़ रहे होंगे, उनके ऊपर से ही जा रहा होगा। और ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है कि जान लो यहाँ होल स्क्वायर करना है, यहाँ क्यूब करना है, या इक्वल करना है, या जोड़ना है, बताते जाए समझ में। थ्योरी में जो है डिस्क्रिप्शन होता है या एक्सप्लेनेशन होता है, टफ होता है, उसमें एक लाइन से दूसरी लाइन अटैच होती है। और अगर शुरुआत की लाइनें नहीं पढ़े हो तो बंदर की तरह बैठ के की करोगे, देखोगे क्या बक रहे, कुछ नहीं समझ में आता, ऊपर से जाता है। तो अब देखो हमने समझा है, मुझे पता है कि अगली लाइन क्या है बतानी है, चाहे जैसे पूछो सोता रहूं जगा दो तब भी बता दूंगा, क्योंकि मैंने इसको समझा हुआ अच्छे से, एक्सप्लेन कर लिया। तो फर्स्ट डिपेंडिंग हो गई। दूसरी डिपेंडिंग क्या है? दूसरी डिपेंडिंग हमने एक्सप्लेन किया, ए प्लेट पी प्लेस्ड एट नेगेटिव पोटेंशियल, देन photo electrons of electron cloud repel and photo current decreases and become zero on increasing negative potential of plate P। प्लेट पी का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, पॉजिटिव पर तो इंटेंसिव हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओ तो ये प्लेट करंट डिक्रीजेज एंड कम टू जीरो, एंड फॉर विच पोटेंशियल इट बिकम जीरो, दैट इज कॉल्ड cutoff potential। and when plate P is at cutoff potential means when plate current IP is zero, then if you increase the intensity of plate incident light, अगर इस समय इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओ तो no current flows through the circuit। it means required energy for photoelectric emission does not depend on the intensity of incident light। It is the second law of photoelectric effect, also it is the second depending of intensity of incident light, दूसरे निर्भरता की है। अब उसके बाद when plate P, ध्यान से सुनो, plate P is at cutoff potential and if be increased frequency of incident light, अभी तक इंटरेस्टिंग बात थी ना। ए प्लेट पी इज एट कटऑफ पोटेंशियल एंड, भाई इसके अलावा कुछ है ही नहीं समझाने, क्या मलाई डाल के समझाओ, फिजिक्स है कोनो इतिहास भूगोल ना कि कविता विता हो खूब बढ़िया में बादल हो तितली भर दी है, समझाओ कैसे बात। तो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस देन देयर विल बी सम प्लेट करंट फाइंड या क्रिएट, तब प्लेट करंट क्रिएट हो जाती है। मीन्स अमाउंट ऑफ प्लेट करंट इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ गए, प्लेट करंट मिल गई, तो आप उसी नियम को अपोजिट करके बोल दोगे जो दूसरा वाला था। रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लिए देखो लिखाए हुए थे लेसन पूरा, तो आप अगर घर पे एक दो बार पढ़े होते, यहाँ समझा रहे अच्छे समझ में आता। रिक्वायर्ड एनर्जी हमको क्या खत्म हो गया, हम आगे कल से दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, समझा चाहे भाड़ में जा, क्या मतलब है, चाहे पढ़ा चाहे पढ़ा, पह आप तू पढ़ा था अगले साल दूसरा करो लड़का ही पढ़े, नंबर तो को सबको पावे कहा ना पावे कहा खी घर से पढ़ के आओ समझ में आवे। रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तीसरा नजर हुआ, ठीक है बेटा, और ये तीसरी डिपेंडिंग हुई फ्रीक्वेंसी पर। चौथा बहुत सरल है, हवाई में है। यहां जो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन दिख रहा है, तो इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जरूर है ज्यादा होनी चाहिए। ये तीसरी बात है, मतलब चौथी क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी ग्रेटर दैन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है बेटा, ये चौथा डिपेंडिंग थी। पांचवा एकदम सरल है, देयर विल बी नो एनी टाइम लैग इन बिटवीन इंसिडेंसिंग ऑफ सनलाइट एंड फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। मतलब जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है वैसे ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। दोनों घटनाओं के बीच में कोई समय पश्चाता टाइमिंग नहीं लगती, जैसे ही बटन ऑन करते हैं वैसे ही बल्ब जलती है,
बटन ऑन करने और बल्ब जलने के बीच में कोई टाइम इंटरवल नहीं लगता, एट वंस होता है। तो वही यहाँ देयर इज नो एनी टाइम लैग इन बिटवीन इंसिडेंसिंग ऑफ सनलाइट एंड फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। मतलब लाइट के इंसिडेंट होने और फोटो इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई समय नहीं लगता। तो दीज आर द 5 लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पांचों जो कंक्लूजन आए शॉर्टकट में आपने समझा कि मिस्टर लेनार्ड, मिल्टन एंड हर्ट्ज यूज्ड डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ सनलाइट एज इंसिडेंस लाइट, different frequencies of incident light, different were function energies containing plates, and find या set up some experiment का ऑपरेटर्स का कंस्ट्रक्शन बता दिया, वर्किंग भी बता दिया। वर्किंग में आपको दिखाया कि लेनार्ड, मिल्टन एंड हर्ट्ज ऑब्जर्व्ड दैट photoelectric emission depend on the intensity of incident light, on the frequency of incident light as follows। नंबर 1, डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी। दो तरफ डिपेंडिंग थी, एक बार प्लेट को धन पे रखकर एक बार माइनस पर रखकर। डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, तो माइनस रखे फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो तुरंत बढ़ गया था करंट, तीसरा नियम आ गया था। चौथा पांचवा एकदम सरल है। ये आपका लेसन ही फिनिश हो गया है, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन 5 आए। पांचों ऑब्जर्वेशन जो आए उसको आइंस्टीन अपने तरीके से डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और प्रूव करेंगे। ये फिगर बना लीजिए और ध्यान से